رہی مجھے آخری راستہ جو نظر آیا وہ بلال ہی تھا، اس لیے مجھے مجبوراً اس سے پیسے مانگنے پڑے۔ اس کی ماں کے ہاتھ میں کانچ کا گلاس ہوتا ہے جو وہیں پر گر کر ٹوٹ جاتا ہے اور وہ اسے کہتی ہیں کہ تمہیں کیا ضرورت تھی ان سے اس طرح سے پیسے مانگنے کی، ہم اس کے اتنے زیادہ بڑا احسان کیسے اتاریں گے، وہ تمہیں بیچ کر کھا جائے گا پھر بھی تمہارے پیسے نہیں پورے کر سکے گا۔ لیکن جس پر صدف انہیں کہتی ہے کہ یہ پیسے میں نے لیے ہیں تو میں ہی اسے واپس کروں گی، آپ اس چیز کی فکر مت کریں۔ لیکن اس کی ماں کہتی ہے کہ تم بکواس کر رہی ہو، یہ سب کچھ جھوٹ ہے، کہہ دو کہ تم پیسے نہیں لے کر آئی، میں نہیں مانتی کہ ہم اسے اتنا بڑا احسان لیں، اس لیے تمہارے باپ نے ساری زندگی اس کے احسان اتارے ہیں اور اب تم نے بھی وہی کام شروع کر دیا ہے۔ صدف ان سے کہتی ہے کہ میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا، میں کیا کرتی، میں نے آپ کے عمار سے پیسے مانگے تھے لیکن اس نے مجھے پیسے دینے سے صاف انکار کر دیا، نہ اس کے پاس اتنے پیسے تھے، میں کیا کرتی، میں اپنے بھائی کے آگے مجبور ہو چکی تھی۔ وہیں دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ جب ہمیشہ بلال کے پاس جاتی ہے اور وہ اسے کہتی ہے کہ تم نے صدف کو کام پر کیوں رکھا ہے، تو بلال اسے کہتا ہے کہ تمہیں نہیں پتا کہ میں نے اسے کام پر کیوں رکھا ہے، میری دلی خواہش تھی کہ وہ میرے پاس آ کر کام کرے۔ وہ اس کے پاس سے ایک ملازم آتا ہے، وہ اسے کہتا ہے کہ یہ پھول لے کر جاؤ، وہ اسے بہت سارے پھول پکڑاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ جا کر صدف میڈم کے کاؤنٹر پر رکھ دو، میں چاہتا ہوں کہ آج ان کا پہلا دن ہے، وہ بہت زیادہ خوش ہو جائیں کہ ان کا پہلا دن ہے اور اتنا اچھا گزرا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ان کا پورا دن فریش گزرے۔ جس پر جب یہ بات ہمشہ دیکھتی ہے تو اسے بہت غصہ آتا ہے، وہ بلال سے کہتی ہے کہ تمہیں اتنا سب کرنے کی کیا ضرورت ہے، وہ صرف ایک ملازمہ ہے جو یہاں پر آ کر تمہارے لیے کام کرے گی اور کچھ بھی نہیں ہے، تم اس کو اتنا اسپیشل کیوں فیل کروا رہے ہو۔ بلال اسے کہتا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، وہ اسپیشل ہے اور بہت اسپیشل ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اس کی ایسے ہی ہمیشہ خاطرداری کرتا رہوں۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ مجھے کتنی زیادہ خوشی ہو رہی ہے صدف کو یہاں پر اپنے آفس میں دیکھ کر۔ صدف کو ہمشہ کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ وہاں سے آ جاتی ہے، وہ عمار کو بلاتی ہے اور اسے بات کرتی ہے، اسے کہتی ہے کہ آخر صدف کو کیا ضرورت پڑی تھی اس کے ساتھ نوکری کرنے کی، تم نے کہا تھا کہ وہ تمہیں پسند کرتی ہے، تم سے شادی کر لے گی، تو اب ایسا کیا ہوا ہے؟ جس پر عمار اسے کہتا ہے کہ مجھے لگتا تھا کہ وہ مجھے پسند کرتی ہے، مجھ سے محبت کرتی ہے، لیکن اسے تو مجھ سے محبت ہی نہیں، میں نے اپنے ہی اندر اتنی بڑی غلط فہمی پال لی تھی کہ شاید صدف مجھ سے بہت محبت کرتی ہوگی، میری طرح ہی مجھے چاہتی ہوگی، لیکن مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ جس طرح میں اسے چاہتا ہوں وہ مجھے ویسے نہیں چاہتی، تم بھی تو بلال کو چاہتی تھی، کیا ہوا پھر؟ بلال تمہاری بات نہیں مانتا، تم کوشش کرو نا اس کو پیچھے ہٹانے کی، ہو سکتا ہے کہ وہ صدف کی جان چھوڑ دے۔ جس پر اسے ہمشہ کہتی ہے کہ بلال بھی اس کی محبت میں اسی طرح سے گرفتار ہے جس طرح سے تم صدف سے محبت کرتے ہو، تمہیں نہیں پتا کہ وہ کسی کی بات سننے کو صدف اپنے گھر جاتی ہے تو اس کی ماں بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں، وہ اسے پوچھتی ہیں کہ تم کہاں سے آ رہی ہو، جس پر صدف اسے کہتی ہے کہ میں بلال کے پاس گئی تھی، جس پر اس کی ماں سے کہتی ہے کہ تم کیا کہہ رہی ہو، تم بلال کے پاس کیا کرنے گئی تھی، تمہارا وہاں کیا کام تھا؟ جس پر صدف انہیں کہتی ہے کہ میں اسے پیسے لینے گئی تھی، اس کی ماں اس کی یہ بات سن کر بہت پریشان ہو جاتی ہیں، وہ اسے کہتی ہیں کہ تم اس سے پیسے لینے کے لیے وہاں کیوں گئی تھی، تمہیں کس نے کہا تھا کہ اس سے پیسے مانگو جا کر؟ صدف ان سے کہتی ہے کہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ میرا بھائی اس حال میں پڑا ہے اور میں اس کے لیے کچھ کر نہیں پا رہی، مجھے آخری راستہ جو نظر آیا وہ بلال ہی تھا، اس لیے مجھے مجبوراً اس سے پیسے مانگنے پڑے۔ اس کی ماں کے ہاتھ میں کانچ کا گلاس ہوتا ہے جو وہیں پر گر کر ٹوٹ جاتا ہے اور وہ اسے کہتی ہیں کہ تمہیں کیا ضرورت تھی ان سے اس طرح سے پیسے مانگنے کی، ہم اس کے اتنے زیادہ بڑا احسان کیسے اتاریں گے، وہ تمہیں بیچ کر کھا جائے گا پھر بھی تمہارے پیسے نہیں پورے کر سکے گا۔ لیکن جس پر صدف انہیں کہتی ہے کہ یہ پیسے میں نے لیے ہیں تو میں ہی اسے واپس کروں گی، آپ اس چیز کی فکر مت کریں۔ لیکن اس کی ماں کہتی ہے کہ تم بکواس کر رہی ہو، یہ سب کچھ جھوٹ ہے، کہہ دو کہ تم پیسے نہیں لے کر آئی، میں نہیں مانتی کہ ہم اسے اتنا بڑا احسان لیں، اس لیے تمہارے باپ نے ساری زندگی اس کے احسان اتارے ہیں اور اب تم نے بھی وہی کام شروع کر دیا ہے۔ صدف ان سے کہتی ہے کہ میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا، میں کیا کرتی، میں نے آپ کے عمار سے پیسے مانگے تھے لیکن اس نے مجھے پیسے دینے سے صاف انکار کر دیا، نہ اس کے پاس اتنے پیسے تھے، میں کیا کرتی، میں اپنے بھائی کے آگے مجبور ہو چکی تھی۔ وہیں دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ جب ہمیشہ بلال کے پاس جاتی ہے اور وہ اسے کہتی ہے کہ تم نے صدف کو کام پر کیوں رکھا ہے، تو بلال اسے کہتا ہے کہ تمہیں نہیں پتا کہ میں نے اسے کام پر کیوں رکھا ہے، میری دلی خواہش تھی کہ وہ میرے پاس آ کر کام کرے۔ وہ اس کے پاس سے ایک ملازم آتا ہے، وہ اسے کہتا ہے کہ یہ پھول لے کر جاؤ، وہ اسے بہت سارے پھول پکڑاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ جا کر صدف میڈم کے کاؤنٹر پر رکھ دو، میں چاہتا ہوں کہ آج ان کا پہلا دن ہے، وہ بہت زیادہ خوش ہو جائیں کہ ان کا پہلا دن ہے اور اتنا اچھا گزرا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ان کا پورا دن فریش گزرے۔ جس پر جب یہ بات ہمشہ دیکھتی ہے تو اسے بہت غصہ آتا ہے، وہ بلال سے کہتی ہے کہ تمہیں اتنا سب کرنے کی کیا ضرورت ہے، وہ صرف ایک ملازمہ ہے جو یہاں پر آ کر تمہارے لیے کام کرے گی اور کچھ بھی نہیں ہے، تم اس کو اتنا اسپیشل کیوں فیل کروا رہے ہو۔ بلال اسے کہتا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، وہ اسپیشل ہے اور بہت اسپیشل ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اس کی ایسے ہی ہمیشہ خاطرداری کرتا رہوں۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ مجھے کتنی زیادہ خوشی ہو رہی ہے صدف کو یہاں پر اپنے آفس میں دیکھ کر۔ صدف کو ہمشہ کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ وہاں سے آ جاتی ہے، وہ عمار کو بلاتی ہے اور اسے بات کرتی ہے، اسے کہتی ہے کہ
आखिर सदफ़ को क्या ज़रूरत पड़ी थी उसके साथ नौकरी करने की? तुमने कहा था कि वो तुम्हें पसंद करती है, तुमसे शादी कर लेगी, तो अब ऐसा क्या हुआ है? जिस पर अमार उसे कहता है कि मुझे लगता था कि वो मुझे पसंद करती है, मुझसे मोहब्बत करती है, लेकिन उसे तो मुझसे मोहब्बत ही नहीं। मैंने अपने ही अंदर इतनी बड़ी गलतफ़हमी पाल ली थी कि शायद सदफ़ मुझसे बहुत मोहब्बत करती होगी, मेरी तरह ही मुझे चाहती होगी, लेकिन मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि जिस तरह मैं उसे चाहता हूँ, वो मुझे वैसे नहीं चाहती। तुम भी तो बिलाल को चाहती थी, क्या हुआ फिर? बिलाल तुम्हारी बात नहीं मानता। तुम कोशिश करो ना उसको पीछे हटाने की, हो सकता है कि वो सदफ़ की जान छोड़ दे। जिस पर उसे हमशा कहती है कि बिलाल भी उसकी मोहब्बत में उसी तरह से गिरफ्तार है जिस तरह से तुम सदफ़ से मोहब्बत करते हो। तुम्हें नहीं पता कि वो किसी की बात सुनने को सदफ़ अपने घर जाती है तो उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो उससे पूछती है कि तुम कहाँ से आ रही हो? जिस पर सदफ़ उसे कहती है कि मैं बिलाल के पास गई थी। जिस पर उसकी माँ उसे कहती है कि तुम क्या कह रही हो? तुम बिलाल के पास क्या करने गई थी? तुम्हारा वहाँ क्या काम था? जिस पर सदफ़ उन्हें कहती है कि मैं उससे पैसे लेने गई थी। उसकी माँ उसकी ये बात सुनकर बहुत परेशान हो जाती है। वो उसे कहती है कि तुम उससे पैसे लेने के लिए वहाँ क्यों गई थी? तुम्हें किसने कहा था कि उससे पैसे माँगो जाकर? सदफ़ उनसे कहती है कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मेरा भाई इस हाल में पड़ा है और मैं उसके लिए कुछ कर नहीं पा रही। मुझे आखिरी रास्ता जो नज़र आया वो बिलाल ही था। इसलिए मुझे मजबूरन उससे पैसे माँगने पड़े। उसकी माँ के हाथ में काँच का गिलास होता है जो वहीं पर गिरकर टूट जाता है और वो उसे कहती हैं कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी उनसे इस तरह से पैसे माँगने की? हम उसके इतने ज़्यादा बड़ा एहसान कैसे उतारेंगे? वो तुम्हें बेचकर खा जाएगा फिर भी तुम्हारे पैसे नहीं पूरे कर सकेगा। लेकिन जिस पर सदफ़ उन्हें कहती है कि ये पैसे मैंने लिए हैं तो मैं ही उसे वापस करूँगी, आप इस चीज़ की फ़िक्र मत करें। लेकिन उसकी माँ कहती है कि तुम बकवास कर रही हो, ये सब कुछ झूठ है, कह दो कि तुम पैसे नहीं लेकर आई। मैं नहीं मानती कि हम उससे इतना बड़ा एहसान लें। उसने तुम्हारे बाप ने सारी ज़िंदगी उसके एहसान उतारे हैं और अब तुमने भी वही काम शुरू कर दिया है। सदफ़ उनसे कहती है कि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, मैं क्या करती? मैंने आपके अमार से पैसे माँगे थे लेकिन उसने मुझे पैसे देने से साफ़ इनकार कर दिया। ना उसके पास इतने पैसे थे, मैं क्या करती? मैं अपने भाई के आगे मजबूर हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जब हमशा बिलाल के पास जाती है और वो उसे कहती है कि तुमने सदफ़ को काम पर क्यों रखा है? तो बिलाल उसे कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि मैंने उसे काम पर क्यों रखा है। मेरी दिली ख्वाहिश थी कि वो मेरे पास आकर काम करे। वो उसके पास से एक मुलाजिम आता है, वो उसे कहता है कि ये फूल लेकर जाओ। वो उसे बहुत सारे फूल पकड़ाता है और उसे कहता है कि जाकर सदफ़ मैडम के काउंटर पर रख दो। मैं चाहता हूँ कि आज उनका पहला दिन है, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएँ कि उनका पहला दिन है और इतना अच्छा गुज़रा है। मैं चाहता हूँ कि उनका पूरा दिन फ्रेश गुज़रे। जिस पर जब ये बात हमशा देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो बिलाल से कहती है कि तुम्हें इतना सब करने की क्या ज़रूरत है? वो सिर्फ़ एक मुलाज़िमा है जो यहाँ पर आकर तुम्हारे लिए काम करेगी और कुछ भी नहीं है। तुम उसको इतना स्पेशल क्यों फ़ील करवा रहे हो? बिलाल उसे कहता है कि ऐसी बात नहीं है, वो स्पेशल है और बहुत स्पेशल है। मैं चाहता हूँ कि मैं उसकी ऐसे ही हमेशा खातिरदारी करता रहूँ। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि मुझे कितनी ज़्यादा खुशी हो रही है सदफ़ को यहाँ पर अपने ऑफ़िस में देखकर। सदफ़ को हमशा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से आ जाती है। वो अमार को बुलाती है और उससे बात करती है। उसे कहती है कि आखिर सदफ़ को क्या ज़रूरत पड़ी थी उसके साथ नौकरी करने की? तुमने कहा था कि वो तुम्हें पसंद करती है, तुमसे शादी कर लेगी, तो अब ऐसा क्या हुआ है? जिस पर अमार उसे कहता है कि मुझे लगता था कि वो मुझे पसंद करती है, मुझसे मोहब्बत करती है, लेकिन उसे तो मुझसे मोहब्बत ही नहीं। मैंने अपने ही अंदर इतनी बड़ी गलतफ़हमी पाल ली थी कि शायद सदफ़ मुझसे बहुत मोहब्बत करती होगी, मेरी तरह ही मुझे चाहती होगी, लेकिन मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि जिस तरह मैं उसे चाहता हूँ, वो मुझे वैसे नहीं चाहती। तुम भी तो बिलाल को चाहती थी, क्या हुआ फिर? बिलाल तुम्हारी बात नहीं मानता। तुम कोशिश करो ना उसको पीछे हटाने की, हो सकता है कि वो सदफ़ की जान छोड़ दे। जिस पर उसे हमशा कहती है कि बिलाल भी उसकी मोहब्बत में उसी तरह से गिरफ्तार है जिस तरह से तुम सदफ़ से मोहब्बत करते हो। तुम्हें नहीं पता कि वो किसी की बात सुनने को सदफ़ अपने घर जाती है तो उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो उससे पूछती है कि तुम कहाँ से आ रही हो? जिस पर सदफ़ उसे कहती है कि मैं बिलाल के पास गई थी। जिस पर उसकी माँ उसे कहती है कि तुम क्या कह रही हो? तुम बिलाल के पास क्या करने गई थी? तुम्हारा वहाँ क्या काम था? जिस पर सदफ़ उन्हें कहती है कि मैं उससे पैसे लेने गई थी। उसकी माँ उसकी ये बात सुनकर बहुत परेशान हो जाती है। वो उसे कहती है कि तुम उससे पैसे लेने के लिए वहाँ क्यों गई थी? तुम्हें किसने कहा था कि उससे पैसे माँगो जाकर? सदफ़ उनसे कहती है कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मेरा भाई इस हाल में पड़ा है और मैं उसके लिए कुछ कर नहीं पा रही। मुझे आखिरी रास्ता जो नज़र आया वो बिलाल ही था। इसलिए मुझे मजबूरन उससे पैसे माँगने पड़े। उसकी माँ के हाथ में काँच का गिलास होता है जो वहीं पर गिरकर टूट जाता है और वो उसे कहती हैं कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी उनसे इस तरह से पैसे माँगने की? हम उसके इतने ज़्यादा बड़ा एहसान कैसे उतारेंगे? वो तुम्हें बेचकर खा जाएगा फिर भी तुम्हारे पैसे नहीं पूरे कर सकेगा। लेकिन जिस पर सदफ़ उन्हें कहती है कि
یہ پیسے میں نے لیے ہیں تو میں ہی اسے واپس کروں گی، آپ اس چیز کی فکر مت کریں۔ لیکن اس کی ماں کہتی ہے کہ تم بکواس کر رہی ہو، یہ سب کچھ جھوٹ ہے، کہہ دو کہ تم پیسے نہیں لے کر آئی، میں نہیں مانتی کہ ہم اس سے اتنا بڑا احسان لیں۔ اس لیے تمہارے باپ نے ساری زندگی اس کے احسان اتارے ہیں اور اب تم نے بھی وہی کام شروع کر دیا ہے۔ صدف ان سے کہتی ہے کہ میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا، میں کیا کرتی، میں نے آپ کے عمار سے پیسے مانگے تھے لیکن اس نے مجھے پیسے دینے سے صاف انکار کر دیا، نہ اس کے پیسے اتنے پیسے تھے، میں کیا کرتی، میں اپنے بھائی کے آگے مجبور ہو چکی تھی۔ وہیں دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ جب ہمیشہ بلال کے پاس جاتی ہے اور وہ اسے کہتی ہے کہ تم نے صدف کو کام پر کیوں رکھا ہے، تو بلال اسے کہتا ہے کہ تمہیں نہیں پتا کہ میں نے اسے کام پر کیوں رکھا ہے، میری دلی خواہش تھی کہ وہ میرے پاس آ کر کام کرے۔ وہ اس کے پاس سے ایک ملازم آتا ہے، وہ اسے کہتا ہے کہ یہ پھول لے کر جاؤ، وہ اسے بہت سارے پھول پکڑاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ جا کر صدف میڈم کے کاؤنٹر پر رکھ دو، میں چاہتا ہوں کہ آج ان کا پہلا دن ہے، وہ بہت زیادہ خوش ہو جائیں کہ ان کا پہلا دن ہے اور اتنا اچھا گزرا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ان کا پورا دن فریش گزرے۔ جس پر جب یہ بات ہمشہ دیکھتی ہے تو اسے بہت غصہ آتا ہے، وہ بلال سے کہتی ہے کہ تمہیں اتنا سب کرنے کی کیا ضرورت ہے، وہ صرف ایک ملازمہ ہے جو یہاں پر آ کر تمہارے لیے کام کرے گی اور کچھ بھی نہیں ہے، تم اس کو اتنا اسپیشل کیوں فیل کروا رہے ہو۔ بلال اسے کہتا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، وہ اسپیشل ہے اور بہت اسپیشل ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اس کی ایسے ہی ہمیشہ خاطرداری کرتا رہوں۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ مجھے کتنی زیادہ خوشی ہو رہی ہے صدف کو یہاں پر اپنے آفس میں دیکھ کر۔ صدف کو ہمشہ کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ وہاں سے آ جاتی ہے، وہ عمار کو بلاتی ہے اور اس سے بات کرتی ہے، اسے کہتی ہے کہ آخر صدف کو کیا ضرورت پڑی تھی اس کے ساتھ نوکری کرنے کی، تم نے کہا تھا کہ وہ تمہیں پسند کرتی ہے، تم سے شادی کر لے گی، تو اب ایسا کیا ہوا ہے؟ جس پر عمار اسے کہتا ہے کہ مجھے لگتا تھا کہ وہ مجھے پسند کرتی ہے، مجھ سے محبت کرتی ہے، لیکن اسے تو مجھ سے محبت ہی نہیں، میں نے اپنے ہی اندر اتنی بڑی غلط فہمی پال لی تھی کہ شاید صدف مجھ سے بہت محبت کرتی ہوگی، میری طرح ہی مجھے چاہتی ہوگی، لیکن مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ جس طرح میں اسے چاہتا ہوں وہ مجھے ویسے نہیں چاہتی۔ تم بھی تو بلال کو چاہتی تھی، کیا ہوا پھر؟ بلال تمہاری بات نہیں مانتا، تم کوشش کرو نا اس کو پیچھے ہٹانے کی، ہو سکتا ہے کہ وہ صدف کی جان چھوڑ دے۔ جس پر اسے ہمشہ کہتی ہے کہ بلال بھی اس کی محبت میں اسی طرح سے گرفتار ہے جس طرح سے تم صدف سے محبت کرتے ہو، تمہیں نہیں پتا کہ وہ کسی کی بات سننے کو صدف اپنے گھر جاتی ہے تو اس کی ماں بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، وہ اسے پوچھتی ہے کہ تم کہاں سے آ رہی ہو، جس پر صدف اسے کہتی ہے کہ میں بلال کے پاس گئی تھی۔ جس پر اس کی ماں سے کہتی ہے کہ تم کیا کہہ رہی ہو، تم بلال کے پاس کیا کرنے گئی تھی، تمہارا وہاں کیا کام تھا؟ جس پر صدف انہیں کہتی ہے کہ میں اسے پیسے لینے گئی تھی۔ اس کی ماں اس کی یہ بات سن کر بہت پریشان ہو جاتی ہیں، وہ اسے کہتی ہے کہ تم اس سے پیسے لینے کے لیے وہاں کیوں گئی تھی، تمہیں کس نے کہا تھا کہ اس سے پیسے مانگو جا کر؟ صدف ان سے کہتی ہے کہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ میرا بھائی اس حال میں پڑا ہے اور میں اس کے لیے کچھ کر نہیں پا رہی، مجھے آخری راستہ جو نظر آیا وہ بلال ہی تھا، اس لیے مجھے مجبوراً اس سے پیسے مانگنے پڑے۔ اس کی ماں کے ہاتھ میں کانچ کا گلاس ہوتا ہے جو وہیں پر گر کر ٹوٹ جاتا ہے اور وہ اسے کہتی ہے کہ تمہیں کیا ضرورت تھی ان سے اس طرح سے پیسے مانگنے کی، ہم اس کے اتنے زیادہ بڑا احسان کیسے اتاریں گے، وہ تمہیں بیچ کر کھا جائے گا پھر بھی تمہارے پیسے نہیں پورے کر سکے گا۔ لیکن جس پر صدف انہیں کہتی ہے کہ یہ پیسے میں نے لیے ہیں تو میں ہی اسے واپس کروں گی، آپ اس چیز کی فکر مت کریں۔ لیکن اس کی ماں کہتی ہے کہ تم بکواس کر رہی ہو، یہ سب کچھ جھوٹ ہے، کہہ دو کہ تم پیسے نہیں لے کر آئی، میں نہیں مانتی کہ ہم اس سے اتنا بڑا احسان لیں۔ اس لیے تمہارے باپ نے ساری زندگی اس کے احسان اتارے ہیں اور اب تم نے بھی وہی کام شروع کر دیا ہے۔ صدف ان سے کہتی ہے کہ میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا، میں کیا کرتی، میں نے آپ کے عمار سے پیسے مانگے تھے لیکن اس نے مجھے پیسے دینے سے صاف انکار کر دیا، نہ اس کے پیسے اتنے پیسے تھے، میں کیا کرتی، میں اپنے بھائی کے آگے مجبور ہو چکی تھی۔ وہیں دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ جب ہمیشہ بلال کے پاس جاتی ہے اور وہ اسے کہتی ہے کہ تم نے صدف کو کام پر کیوں رکھا ہے، تو بلال اسے کہتا ہے کہ تمہیں نہیں پتا کہ میں نے اسے کام پر کیوں رکھا ہے، میری دلی خواہش تھی کہ وہ میرے پاس آ کر کام کرے۔ وہ اس کے پاس سے ایک ملازم آتا ہے، وہ اسے کہتا ہے کہ یہ پھول لے کر جاؤ، وہ اسے بہت سارے پھول پکڑاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ جا کر صدف میڈم کے کاؤنٹر پر رکھ دو، میں چاہتا ہوں کہ آج ان کا پہلا دن ہے، وہ بہت زیادہ خوش ہو جائیں کہ ان کا پہلا دن ہے اور اتنا اچھا گزرا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ان کا پورا دن فریش گزرے۔ جس پر جب یہ بات ہمشہ دیکھتی ہے تو اسے بہت غصہ آتا ہے، وہ بلال سے کہتی ہے کہ تمہیں اتنا سب کرنے کی کیا ضرورت ہے، وہ صرف ایک ملازمہ ہے جو یہاں پر آ کر تمہارے لیے کام کرے گی اور کچھ بھی نہیں ہے، تم اس کو اتنا اسپیشل کیوں فیل کروا رہے ہو۔ بلال اسے کہتا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، وہ اسپیشل ہے اور بہت اسپیشل ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اس کی ایسے ہی ہمیشہ خاطرداری کرتا رہوں۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ مجھے کتنی زیادہ خوشی ہو رہی ہے صدف کو یہاں پر اپنے آفس میں دیکھ کر۔ صدف کو ہمشہ کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ وہاں سے آ جاتی ہے، وہ عمار کو بلاتی ہے اور اس سے بات کرتی ہے، اسے کہتی ہے کہ آخر صدف کو کیا ضرورت پڑی تھی اس کے ساتھ نوکری کرنے کی، تم نے کہا تھا کہ وہ تمہیں پسند کرتی ہے، تم سے شادی کر لے گی، تو اب ایسا کیا ہوا ہے؟ جس پر عمار اسے کہتا ہے کہ مجھے لگتا تھا کہ وہ مجھے پسند کرتی ہے، مجھ سے محبت کرتی ہے، لیکن اسے تو مجھ سے محبت ہی نہیں، میں نے اپنے ہی اندر اتنی بڑی غلط فہمی پال لی تھی کہ شاید صدف مجھ سے بہت محبت کرتی ہوگی، میری طرح ہی مجھے چاہتی ہوگی، لیکن مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ جس طرح میں اسے چاہتا ہوں وہ مجھے ویسے نہیں چاہتی۔ تم بھی تو بلال کو چاہتی تھی، کیا ہوا پھر؟ بلال تمہاری بات نہیں مانتا، تم
कोशिश करो ना उसको पीछे हटाने की, हो सकता है कि वो सदफ की जान छोड़ दे। जिस पर उसे हमशा कहती है कि बिलाल भी उसकी मोहब्बत में उसी तरह से गिरफ्तार है जिस तरह से तुम सदफ से मोहब्बत करते हो। तुम्हें नहीं पता कि वो किसी की बात सुनने को सदफ अपने घर जाती है तो उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो उससे पूछती है कि तुम कहाँ से आ रही हो, जिस पर सदफ उसे कहती है कि मैं बिलाल के पास गई थी। जिस पर उसकी माँ उसे कहती है कि तुम क्या कह रही हो, तुम बिलाल के पास क्या करने गई थी, तुम्हारा वहाँ क्या काम था। जिस पर सदफ उन्हें कहती है कि मैं उससे पैसे लेने गई थी। उसकी माँ उसकी ये बात सुनकर बहुत परेशान हो जाती है। वो उसे कहती है कि तुम उससे पैसे लेने के लिए वहाँ क्यों गई थी, तुम्हें किसने कहा था कि उससे पैसे मांगो जाकर। सदफ उनसे कहती है कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मेरा भाई इस हाल में पड़ा है और मैं उसके लिए कुछ कर नहीं पा रही। मुझे आखिरी रास्ता जो नज़र आया वो बिलाल ही था, इसलिए मुझे मजबूरन उससे पैसे मांगने पड़े। उसकी माँ के हाथ में कांच का गिलास होता है जो वहीं पर गिरकर टूट जाता है और वो उसे कहती है कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी उनसे इस तरह से पैसे मांगने की, हम उसके इतने ज़्यादा बड़ा एहसान कैसे उतारेंगे, वो तुम्हें बेचकर खा जाएगा फिर भी तुम्हारे पैसे नहीं पूरे कर सकेगा। लेकिन जिस पर सदफ उन्हें कहती है कि ये पैसे मैंने लिए हैं तो मैं ही उसे वापस करूँगी, आप इस चीज़ की फ़िक्र मत करें। लेकिन उसकी माँ कहती है कि तुम बकवास कर रही हो, ये सब कुछ झूठ है, कह दो कि तुम पैसे नहीं लेकर आई। मैं नहीं मानती कि हम उससे इतना बड़ा एहसान लें। उसके तुम्हारे बाप ने सारी ज़िंदगी उसके एहसान उतारे हैं और अब तुमने भी वही काम शुरू कर दिया है। सदफ उनसे कहती है कि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, मैं क्या करती। मैंने आपके अमार से पैसे मांगे थे लेकिन उसने मुझे पैसे देने से साफ इनकार कर दिया। ना उसके पैसे इतने पैसे थे, मैं क्या करती, मैं अपने भाई के आगे मजबूर हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जब हमेशा बिलाल के पास जाती है और वो उसे कहती है कि तुमने सदफ को काम पर क्यों रखा है, तो बिलाल उसे कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि मैंने उसे काम पर क्यों रखा है। मेरी दिली ख्वाहिश थी कि वो मेरे पास आकर काम करे। वो उसके पास से एक मुलाजिम आता है, वो उसे कहता है कि ये फूल लेकर जाओ। वो उसे बहुत सारे फूल पकड़ाता है और उसे कहता है कि जाकर सदफ मैडम के काउंटर पर रख दो। मैं चाहता हूँ कि आज उनका पहला दिन है, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएं कि उनका पहला दिन है और इतना अच्छा गुजरा। मैं चाहता हूँ कि उनका पूरा दिन फ्रेश गुजरे। जिस पर जब ये बात हमशा देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो बिलाल से कहती है कि तुम्हें इतना सब करने की क्या ज़रूरत है, वो सिर्फ एक मुलाजिमा है जो यहाँ पर आकर तुम्हारे लिए काम करेगी और कुछ भी नहीं है, तुम उसको इतना स्पेशल क्यों फील करवा रहे हो। बिलाल उसे कहता है कि ऐसी बात नहीं है, वो स्पेशल है और बहुत स्पेशल है। मैं चाहता हूँ कि मैं उसकी ऐसे ही हमेशा खातिरदारी करता रहूँ। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि मुझे कितनी ज़्यादा खुशी हो रही है सदफ को यहाँ पर अपने ऑफिस में देखकर। सदफ को हमशा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से आ जाती है। वो अमार को बुलाती है और उससे बात करती है। उसे कहती है कि आखिर सदफ को क्या ज़रूरत पड़ी थी उसके साथ नौकरी करने की। तुमने कहा था कि वो तुम्हें पसंद करती है, तुमसे शादी कर लेगी, तो अब ऐसा क्या हुआ है। जिस पर हमारा उसे कहता है कि मुझे लगता था कि वो मुझे पसंद करती है, मुझसे मोहब्बत करती है, लेकिन उसे तो मुझसे मोहब्बत थी ही नहीं। मैंने अपने ही अंदर इतनी बड़ी गलतफहमी पा ली थी कि शायद सदफ मुझसे बहुत मोहब्बत करती होगी, मेरी तरह ही मुझे चाहती होगी। लेकिन मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि जिस तरह मैं उसे चाहता हूँ वो मुझे वैसे नहीं चाहती। तुम भी तो बिलाल को चाहती थी, क्या हुआ फिर। बिलाल तुम्हारी बात नहीं मानता, तुम कोशिश करो ना उसको पीछे हटाने की, हो सकता है कि वो सदफ की जान छोड़ दे। जिस पर उसे हमशा कहती है कि बिलाल भी उसकी मोहब्बत में उसी तरह से गिरफ्तार है जिस तरह से तुम सदफ से मोहब्बत करते हो। तुम्हें नहीं पता कि वो किसी की बात सुनने को सदफ अपने घर जाती है तो उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो उससे पूछती है कि तुम कहाँ से आ रही हो, जिस पर सदफ उसे कहती है कि मैं बिलाल के पास गई थी। जिस पर उसकी माँ उसे कहती है कि तुम क्या कह रही हो, तुम बिलाल के पास क्या करने गई थी, तुम्हारा वहाँ क्या काम था। जिस पर सदफ उन्हें कहती है कि मैं उससे पैसे लेने गई थी। उसकी माँ उसकी ये बात सुनकर बहुत परेशान हो जाती है। वो उसे कहती है कि तुम उससे पैसे लेने के लिए वहाँ क्यों गई थी, तुम्हें किसने कहा था कि उससे पैसे मांगो जाकर। सदफ उनसे कहती है कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मेरा भाई इस हाल में पड़ा है और मैं उसके लिए कुछ कर नहीं पा रही। मुझे आखिरी रास्ता जो नज़र आया वो बिलाल ही था, इसलिए मुझे मजबूरन उससे पैसे मांगने पड़े। उसकी माँ के हाथ में कांच का गिलास होता है जो वहीं पर गिरकर टूट जाता है और वो उसे कहती है कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी उनसे इस तरह से पैसे मांगने की, हम उसके इतने ज़्यादा बड़ा एहसान कैसे उतारेंगे, वो तुम्हें बेचकर खा जाएगा फिर भी तुम्हारे पैसे नहीं पूरे कर सकेगा। लेकिन जिस पर सदफ उन्हें कहती है कि ये पैसे मैंने लिए हैं तो मैं ही उसे वापस करूँगी, आप इस चीज़ की फ़िक्र मत करें। लेकिन उसकी माँ कहती है कि तुम बकवास कर रही हो, ये सब कुछ झूठ है, कह दो कि तुम पैसे नहीं लेकर आई। मैं नहीं मानती कि हम उससे इतना बड़ा एहसान लें। उसके तुम्हारे बाप ने सारी ज़िंदगी उसके एहसान उतारे हैं और अब तुमने भी वही काम शुरू कर दिया है। सदफ उनसे कहती है कि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, मैं क्या करती। मैंने आपके अमार से पैसे मांगे थे लेकिन उसने मुझे पैसे देने से साफ इनकार कर दिया। ना उसके पैसे इतने पैसे थे, मैं क्या करती, मैं अपने भाई के आगे मजबूर हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि
जब हमेशा बिलाल के पास जाती है और वो उसे कहती है कि तुमने सदफ़ को काम पर क्यों रखा है। तो बिलाल उसे कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि मैंने उसे काम पर क्यों रखा है। मेरी दिली ख्वाहिश थी कि वो मेरे पास आकर काम करे। वो उसके पास से एक मुलाजिम आता है, वो उसे कहता है कि ये फूल लेकर जाओ। वो उसे बहुत सारे फूल पकड़ाता है और उसे कहता है कि जाकर सदफ़ मैडम के काउंटर पर रख दो। मैं चाहता हूँ कि आज उनका पहला दिन है, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएँ कि उनका पहला दिन है और इतना अच्छा गुज़रा है। मैं चाहता हूँ कि उनका पूरा दिन फ्रेश गुज़रे। जिस पर जब ये बात हमशा देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो बिलाल से कहती है कि तुम्हें इतना सब करने की क्या ज़रूरत है, वो सिर्फ़ एक मुलाज़िमा है जो यहाँ पर आकर तुम्हारे लिए काम करेगी और कुछ भी नहीं है। तुम उसको इतना स्पेशल क्यों फ़ील करवा रहे हो। बिलाल उसे कहता है कि ऐसी बात नहीं है, वो स्पेशल है और बहुत स्पेशल है। मैं चाहता हूँ कि मैं उसकी ऐसे ही हमेशा खातिरदारी करता रहूँ। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि मुझे कितनी ज़्यादा खुशी हो रही है सदफ़ को यहाँ पर अपने ऑफ़िस में देखकर। सदफ़ को हमशा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से आ जाती है। वो अम्मार को बुलाती है और उससे बात करती है। उसे कहती है कि आखिर सदफ़ को क्या ज़रूरत पड़ी थी उसके साथ नौकरी करने की। तुमने कहा था कि वो तुम्हें पसंद करती है, तुमसे शादी कर लेगी, तो अब ऐसा क्या हुआ है। जिस पर अम्मार उसे कहता है कि मुझे लगता था कि वो मुझे पसंद करती है, मुझसे मोहब्बत करती है, लेकिन उसे तो मुझसे मोहब्बत ही नहीं। मैंने अपने ही अंदर इतनी बड़ी गलतफ़हमी पाल ली थी कि शायद सदफ़ मुझसे बहुत मोहब्बत करती होगी, मेरी तरह ही मुझे चाहती होगी, लेकिन मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि जिस तरह मैं उसे चाहता हूँ वो मुझे वैसे नहीं चाहती। तुम भी तो बिलाल को चाहती थी, क्या हुआ फिर। बिलाल तुम्हारी बात नहीं मानता, तुम कोशिश करो ना उसको पीछे हटाने की, हो सकता है कि वो सदफ़ की जान छोड़ दे। जिस पर उसे हमशा कहती है कि बिलाल भी उसकी मोहब्बत में उसी तरह से गिरफ्तार है जिस तरह से तुम सदफ़ से मोहब्बत करते हो। तुम्हें नहीं पता कि वो किसी की बात सुनने को सदफ़ अपने घर जाती है तो उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो उससे पूछती है कि तुम कहाँ से आ रही हो। जिस पर सदफ़ उसे कहती है कि मैं बिलाल के पास गई थी। जिस पर उसकी माँ उसे कहती है कि तुम क्या कह रही हो, तुम बिलाल के पास क्या करने गई थी, तुम्हारा वहाँ क्या काम था। जिस पर सदफ़ उन्हें कहती है कि मैं उससे पैसे लेने गई थी। उसकी माँ उसकी ये बात सुनकर बहुत परेशान हो जाती है। वो उसे कहती है कि तुम उससे पैसे लेने के लिए वहाँ क्यों गई थी, तुम्हें किसने कहा था कि उससे पैसे मांगो जाकर। सदफ़ उनसे कहती है कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मेरा भाई इस हाल में पड़ा है और मैं उसके लिए कुछ कर नहीं पा रही। मुझे आखिरी रास्ता जो नज़र आया वो बिलाल ही था, इसलिए मुझे मजबूरन उससे पैसे मांगने पड़े। उसकी माँ के हाथ में कांच का गिलास होता है जो वहीं पर गिर कर टूट जाता है और वो उसे कहती है कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी उनसे इस तरह से पैसे मांगने की, हम उसके इतने ज़्यादा बड़ा एहसान कैसे उतारेंगे, वो तुम्हें बेचकर खा जाएगा फिर भी तुम्हारे पैसे नहीं पूरे कर सकेगा। लेकिन जिस पर सदफ़ उन्हें कहती है कि ये पैसे मैंने लिए हैं तो मैं ही उसे वापस करूँगी, आप इस चीज़ की फ़िक्र मत करें। लेकिन उसकी माँ कहती है कि तुम बकवास कर रही हो, ये सब कुछ झूठ है, कह दो कि तुम पैसे नहीं लेकर आई। मैं नहीं मानती कि हम उससे इतना बड़ा एहसान लें। उसने तुम्हारे बाप ने सारी ज़िंदगी उसके एहसान उतारे हैं और अब तुमने भी वही काम शुरू कर दिया है। सदफ़ उनसे कहती है कि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, मैं क्या करती। मैंने आपके अम्मार से पैसे मांगे थे लेकिन उसने मुझे पैसे देने से साफ इनकार कर दिया। ना उसके पास इतने पैसे थे, मैं क्या करती, मैं अपने भाई के आगे मजबूर हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जब हमेशा बिलाल के पास जाती है और वो उसे कहती है कि तुमने सदफ़ को काम पर क्यों रखा है। तो बिलाल उसे कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि मैंने उसे काम पर क्यों रखा है। मेरी दिली ख्वाहिश थी कि वो मेरे पास आकर काम करे। वो उसके पास से एक मुलाजिम आता है, वो उसे कहता है कि ये फूल लेकर जाओ। वो उसे बहुत सारे फूल पकड़ाता है और उसे कहता है कि जाकर सदफ़ मैडम के काउंटर पर रख दो। मैं चाहता हूँ कि आज उनका पहला दिन है, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएँ कि उनका पहला दिन है और इतना अच्छा गुज़रा है। मैं चाहता हूँ कि उनका पूरा दिन फ्रेश गुज़रे। जिस पर जब ये बात हमशा देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो बिलाल से कहती है कि तुम्हें इतना सब करने की क्या ज़रूरत है, वो सिर्फ़ एक मुलाज़िमा है जो यहाँ पर आकर तुम्हारे लिए काम करेगी और कुछ भी नहीं है। तुम उसको इतना स्पेशल क्यों फ़ील करवा रहे हो। बिलाल उसे कहता है कि ऐसी बात नहीं है, वो स्पेशल है और बहुत स्पेशल है। मैं चाहता हूँ कि मैं उसकी ऐसे ही हमेशा खातिरदारी करता रहूँ। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि मुझे कितनी ज़्यादा खुशी हो रही है सदफ़ को यहाँ पर अपने ऑफ़िस में देखकर। सदफ़ को हमशा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से आ जाती है। वो अम्मार को बुलाती है और उससे बात करती है। उसे कहती है कि आखिर सदफ़ को क्या ज़रूरत पड़ी थी उसके साथ नौकरी करने की। तुमने कहा था कि वो तुम्हें पसंद करती है, तुमसे शादी कर लेगी, तो अब ऐसा क्या हुआ है। जिस पर अम्मार उसे कहता है कि मुझे लगता था कि वो मुझे पसंद करती है, मुझसे मोहब्बत करती है, लेकिन उसे तो मुझसे मोहब्बत ही नहीं। मैंने अपने ही अंदर इतनी बड़ी गलतफ़हमी पाल ली थी कि शायद सदफ़ मुझसे बहुत मोहब्बत करती होगी, मेरी तरह ही मुझे चाहती होगी, लेकिन मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि जिस तरह मैं उसे चाहता हूँ वो मुझे वैसे नहीं चाहती। तुम भी तो बिलाल को चाहती थी, क्या हुआ फिर। बिलाल तुम्हारी बात नहीं मानता, तुम कोशिश करो ना उसको पीछे हटाने की, हो सकता है कि वो सदफ़ की जान छोड़ दे। जिस पर उसे हमशा कहती है कि बिलाल भी उसकी मोहब्बत में उसी तरह से गिरफ्तार है जिस तरह से तुम सदफ़ से मोहब्बत करते हो। तुम्हें नहीं पता कि वो किसी की बात सुनने को सदफ़ अपने घर जाती है तो उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो उससे पूछती है कि तुम कहाँ से आ रही हो। जिस पर सदफ़ उसे कहती है कि
मैं बिलाल के पास गई थी, जिस पर उसकी माँ उसे कहती है कि तुम क्या कह रही हो, तुम बिलाल के पास क्या करने गई थी, तुम्हारा वहाँ क्या काम था। जिस पर सदफ उन्हें कहती है कि मैं उससे पैसे लेने गई थी। उसकी माँ उसकी ये बात सुनकर बहुत परेशान हो जाती है। वो उसे कहती है कि तुम उससे पैसे लेने के लिए वहाँ क्यों गई थी, तुम्हें किसने कहा था कि उससे पैसे मांगो जाकर। सदफ उनसे कहती है कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मेरा भाई इस हाल में पड़ा है और मैं उसके लिए कुछ कर नहीं पा रही। मुझे आखिरी रास्ता जो नज़र आया वो बिलाल ही था, इसलिए मुझे मजबूरन उससे पैसे मांगने पड़े। उसकी माँ के हाथ में कांच का गिलास होता है जो वहीं पर गिरकर टूट जाता है, और वो उसे कहती है कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी उनसे इस तरह से पैसे मांगने की, हम उसके इतने ज़्यादा बड़ा एहसान कैसे उतारेंगे, वो तुम्हें बेचकर खा जाएगा फिर भी तुम्हारे पैसे नहीं पूरे कर सकेगा। लेकिन जिस पर सदफ उन्हें कहती है कि ये पैसे मैंने लिए हैं तो मैं ही उसे वापस करूँगी, आप इस चीज़ की फ़िक्र मत करें। लेकिन उसकी माँ कहती है कि तुम बकवास कर रही हो, ये सब कुछ झूठ है, कह दो कि तुम पैसे नहीं लेकर आई। मैं नहीं मानती कि हम उससे इतना बड़ा एहसान लें। उसने तुम्हारे बाप ने सारी ज़िंदगी उसके एहसान उतारे हैं और अब तुमने भी वही काम शुरू कर दिया है। सदफ उनसे कहती है कि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, मैं क्या करती। मैंने आपके अमार से पैसे मांगे थे लेकिन उसने मुझे पैसे देने से साफ इनकार कर दिया। ना उसके पैसे इतने पैसे थे, मैं क्या करती, मैं अपने भाई के आगे मजबूर हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जब हमेशा बिलाल के पास जाती है और वो उसे कहती है कि तुमने सदफ को काम पर क्यों रखा है, तो बिलाल उसे कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि मैंने उसे काम पर क्यों रखा है। मेरी दिली ख्वाहिश थी कि वो मेरे पास आकर काम करे। वो उसके पास से एक मुलाजिम आता है, वो उसे कहता है कि ये फूल लेकर जाओ। वो उसे बहुत सारे फूल पकड़ाता है और उसे कहता है कि जाकर सदफ मैडम के काउंटर पर रख दो। मैं चाहता हूँ कि आज उनका पहला दिन है, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएं कि उनका पहला दिन है और इतना अच्छा गुजरा। मैं चाहता हूँ कि उनका पूरा दिन फ्रेश गुजरे। जिस पर जब ये बात हमशा देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो बिलाल से कहती है कि तुम्हें इतना सब करने की क्या ज़रूरत है, वो सिर्फ एक मुलाजिमा है जो यहाँ पर आकर तुम्हारे लिए काम करेगी और कुछ भी नहीं है, तुम उसको इतना स्पेशल क्यों फील करवा रहे हो। बिलाल उसे कहता है कि ऐसी बात नहीं है, वो स्पेशल है और बहुत स्पेशल है। मैं चाहता हूँ कि मैं उसकी ऐसे ही हमेशा खातिरदारी करता रहूँ। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि मुझे कितनी ज़्यादा खुशी हो रही है सदफ को यहाँ पर अपने ऑफिस में देखकर। सदफ को हमशा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से आ जाती है। वो अमार को बुलाती है और उससे बात करती है। उसे कहती है कि आखिर सदफ को क्या ज़रूरत पड़ी थी उसके साथ नौकरी करने की। तुमने कहा था कि वो तुम्हें पसंद करती है, तुमसे शादी कर लेगी, तो अब ऐसा क्या हुआ है। जिस पर हमारा उसे कहता है कि मुझे लगता था कि वो मुझे पसंद करती है, मुझसे मोहब्बत करती है, लेकिन उसे तो मुझसे मोहब्बत ही नहीं। मैंने अपने ही अंदर इतनी बड़ी गलतफहमी पाल ली थी कि शायद सदफ मुझसे बहुत मोहब्बत करती होगी, मेरी तरह ही मुझे चाहती होगी। लेकिन मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि जिस तरह मैं उसे चाहता हूँ वो मुझे वैसे नहीं चाहती। तुम भी तो बिलाल को चाहती थी, क्या हुआ फिर। बिलाल तुम्हारी बात नहीं मानता, तुम कोशिश करो ना उसको पीछे हटाने की, हो सकता है कि वो सदफ की जान छोड़ दे। जिस पर उसे हमशा कहती है कि बिलाल भी उसकी मोहब्बत में उसी तरह से गिरफ्तार है जिस तरह से तुम सदफ से मोहब्बत करते हो। तुम्हें नहीं पता कि वो किसी की बात सुनने को सदफ अपने घर जाती है तो उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो उससे पूछती है कि तुम कहाँ से आ रही हो। जिस पर सदफ उसे कहती है कि मैं बिलाल के पास गई थी। जिस पर उसकी माँ से कहती है कि तुम क्या कह रही हो, तुम बिलाल के पास क्या करने गई थी, तुम्हारा वहाँ क्या काम था। जिस पर सदफ उन्हें कहती है कि मैं उससे पैसे लेने गई थी। उसकी माँ उसकी ये बात सुनकर बहुत परेशान हो जाती है। वो उसे कहती है कि तुम उससे पैसे लेने के लिए वहाँ क्यों गई थी, तुम्हें किसने कहा था कि उससे पैसे मांगो जाकर। सदफ उनसे कहती है कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मेरा भाई इस हाल में पड़ा है और मैं उसके लिए कुछ कर नहीं पा रही। मुझे आखिरी रास्ता जो नज़र आया वो बिलाल ही था, इसलिए मुझे मजबूरन उससे पैसे मांगने पड़े। उसकी माँ के हाथ में कांच का गिलास होता है जो वहीं पर गिरकर टूट जाता है, और वो उसे कहती है कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी उनसे इस तरह से पैसे मांगने की, हम उसके इतने ज़्यादा बड़ा एहसान कैसे उतारेंगे, वो तुम्हें बेचकर खा जाएगा फिर भी तुम्हारे पैसे नहीं पूरे कर सकेगा। लेकिन जिस पर सदफ उन्हें कहती है कि ये पैसे मैंने लिए हैं तो मैं ही उसे वापस करूँगी, आप इस चीज़ की फ़िक्र मत करें। लेकिन उसकी माँ कहती है कि तुम बकवास कर रही हो, ये सब कुछ झूठ है, कह दो कि तुम पैसे नहीं लेकर आई। मैं नहीं मानती कि हम उससे इतना बड़ा एहसान लें। उसने तुम्हारे बाप ने सारी ज़िंदगी उसके एहसान उतारे हैं और अब तुमने भी वही काम शुरू कर दिया है। सदफ उनसे कहती है कि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, मैं क्या करती। मैंने आपके अमार से पैसे मांगे थे लेकिन उसने मुझे पैसे देने से साफ इनकार कर दिया। ना उसके पैसे इतने पैसे थे, मैं क्या करती, मैं अपने भाई के आगे मजबूर हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जब हमेशा बिलाल के पास जाती है और वो उसे कहती है कि तुमने सदफ को काम पर क्यों रखा है, तो बिलाल उसे कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि मैंने उसे काम पर क्यों रखा है, मेरी दिली ख्वाहिश थी कि वो मेरे पास आकर काम करे। वो उसके पास से एक मुलाजिम आता है, वो उसे कहता है कि ये फूल लेकर जाओ। वो उसे बहुत सारे फूल पकड़ाता है और उसे कहता है कि जाकर सदफ मैडम के काउंटर पर रख दो। मैं चाहता हूँ कि आज उनका पहला दिन है, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएं कि उनका पहला दिन है और इतना अच्छा गुजरा। मैं चाहता हूँ कि उनका पूरा दिन फ्रेश गुजरे। जिस पर जब ये बात हमशा देखती है तो
उसे बहुत गुस्सा आता है। वो बिलाल से कहती है कि तुम्हें इतना सब करने की क्या ज़रूरत है, वो सिर्फ़ एक मुलाज़िमा है जो यहाँ पर आकर तुम्हारे लिए काम करेगी और कुछ भी नहीं है, तुम उसको इतना स्पेशल क्यों फ़ील करवा रहे हो। बिलाल उसे कहता है कि ऐसी बात नहीं है, वो स्पेशल है और बहुत स्पेशल है। मैं चाहता हूँ कि मैं उसकी ऐसे ही हमेशा खातिरदारी करता रहूँ। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि मुझे कितनी ज़्यादा खुशी हो रही है सदफ़ को यहाँ पर अपने ऑफ़िस में देखकर। सदफ़ को हमशा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से आ जाती है। वो अम्मार को बुलाती है और उससे बात करती है। उसे कहती है कि आखिर सदफ़ को क्या ज़रूरत पड़ी थी उसके साथ नौकरी करने की? तुमने कहा था कि वो तुम्हें पसंद करती है, तुमसे शादी कर लेगी, तो अब ऐसा क्या हुआ है? जिस पर अम्मार उसे कहता है कि मुझे लगता था कि वो मुझे पसंद करती है, मुझसे मोहब्बत करती है, लेकिन उसे तो मुझसे मोहब्बत थी ही नहीं। मैंने अपने ही अंदर इतनी बड़ी गलतफ़हमी पाल ली थी कि शायद सदफ़ मुझसे बहुत मोहब्बत करती होगी, मेरी तरह ही मुझे चाहती होगी, लेकिन मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि जिस तरह मैं उसे चाहता हूँ, वो मुझे वैसे नहीं चाहती। तुम भी तो बिलाल को चाहती थी, क्या हुआ फिर? बिलाल तुम्हारी बात नहीं मानता, तुम कोशिश करो ना उसको पीछे हटाने की, हो सकता है कि वो सदफ़ की जान छोड़ दे। जिस पर उसे हमशा कहती है कि बिलाल भी उसकी मोहब्बत में उसी तरह से गिरफ्तार है जिस तरह से तुम सदफ़ से मोहब्बत करते हो। तुम्हें नहीं पता कि वो किसी की बात सुनने को सदफ़ अपने घर जाती है तो उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो उससे पूछती हैं कि तुम कहाँ से आ रही हो? जिस पर सदफ़ उसे कहती है कि मैं बिलाल के पास गई थी। जिस पर उसकी माँ उसे कहती है कि तुम क्या कह रही हो? तुम बिलाल के पास क्या करने गई थी? तुम्हारा वहाँ क्या काम था? जिस पर सदफ़ उन्हें कहती है कि मैं उससे पैसे लेने गई थी। उसकी माँ उसकी ये बात सुनकर बहुत परेशान हो जाती है। वो उसे कहती है कि तुम उससे पैसे लेने के लिए वहाँ क्यों गई थी? तुम्हें किसने कहा था कि उससे पैसे माँगो जाकर? सदफ़ उनसे कहती है कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मेरा भाई इस हाल में पड़ा है और मैं उसके लिए कुछ कर नहीं पा रही। मुझे आखिरी रास्ता जो नज़र आया वो बिलाल ही था। इसलिए मुझे मजबूरन उससे पैसे माँगने पड़े। उसकी माँ के हाथ में काँच का गिलास होता है जो वहीं पर गिरकर टूट जाता है और वो उसे कहती हैं कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी उनसे इस तरह से पैसे माँगने की? हम उसके इतने ज़्यादा बड़ा एहसान कैसे उतारेंगे? वो तुम्हें बेचकर खा जाएगा फिर भी तुम्हारे पैसे नहीं पूरे कर सकेगा। लेकिन जिस पर सदफ़ उन्हें कहती है कि ये पैसे मैंने लिए हैं तो मैं ही उसे वापस करूँगी, आप इस चीज़ की फ़िक्र मत करें। लेकिन उसकी माँ कहती है कि तुम बकवास कर रही हो, ये सब कुछ झूठ है, कह दो कि तुम पैसे नहीं लेकर आई। मैं नहीं मानती कि हम उससे इतना बड़ा एहसान लें। उसके तुम्हारे बाप ने सारी ज़िंदगी उसके एहसान उतारे हैं और अब तुमने भी वही काम शुरू कर दिया है। सदफ़ उनसे कहती है कि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, मैं क्या करती? मैंने आपके अम्मार से पैसे माँगे थे लेकिन उसने मुझे पैसे देने से साफ़ इनकार कर दिया। ना उसके पास इतने पैसे थे, मैं क्या करती? मैं अपने भाई के आगे मजबूर हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जब हमेशा बिलाल के पास जाती है और वो उसे कहती है कि तुमने सदफ़ को काम पर क्यों रखा है? तो बिलाल उसे कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि मैंने उसे काम पर क्यों रखा है। मेरी दिली ख्वाहिश थी कि वो मेरे पास आकर काम करे। वो उसके पास से एक मुलाजिम आता है, वो उसे कहता है कि ये फूल लेकर जाओ। वो उसे बहुत सारे फूल पकड़ाता है और उसे कहता है कि जाकर सदफ़ मैडम के काउंटर पर रख दो। मैं चाहता हूँ कि आज उनका पहला दिन है, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएँ कि उनका पहला दिन है और इतना अच्छा गुज़रा। मैं चाहता हूँ कि उनका पूरा दिन फ्रेश गुज़रे। जिस पर जब ये बात हमशा देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो बिलाल से कहती है कि तुम्हें इतना सब करने की क्या ज़रूरत है, वो सिर्फ़ एक मुलाज़िमा है जो यहाँ पर आकर तुम्हारे लिए काम करेगी और कुछ भी नहीं है, तुम उसको इतना स्पेशल क्यों फ़ील करवा रहे हो। बिलाल उसे कहता है कि ऐसी बात नहीं है, वो स्पेशल है और बहुत स्पेशल है। मैं चाहता हूँ कि मैं उसकी ऐसे ही हमेशा खातिरदारी करता रहूँ। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि मुझे कितनी ज़्यादा खुशी हो रही है सदफ़ को यहाँ पर अपने ऑफ़िस में देखकर। सदफ़ को हमशा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से आ जाती है। वो अम्मार को बुलाती है और उससे बात करती है। उसे कहती है कि आखिर सदफ़ को क्या ज़रूरत पड़ी थी उसके साथ नौकरी करने की? तुमने कहा था कि वो तुम्हें पसंद करती है, तुमसे शादी कर लेगी, तो अब ऐसा क्या हुआ है? जिस पर अम्मार उसे कहता है कि मुझे लगता था कि वो मुझे पसंद करती है, मुझसे मोहब्बत करती है, लेकिन उसे तो मुझसे मोहब्बत थी ही नहीं। मैंने अपने ही अंदर इतनी बड़ी गलतफ़हमी पाल ली थी कि शायद सदफ़ मुझसे बहुत मोहब्बत करती होगी, मेरी तरह ही मुझे चाहती होगी, लेकिन मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि जिस तरह मैं उसे चाहता हूँ, वो मुझे वैसे नहीं चाहती। तुम भी तो बिलाल को चाहती थी, क्या हुआ फिर? बिलाल तुम्हारी बात नहीं मानता, तुम कोशिश करो ना उसको पीछे हटाने की, हो सकता है कि वो सदफ़ की जान छोड़ दे। जिस पर उसे हमशा कहती है कि बिलाल भी उसकी मोहब्बत में उसी तरह से गिरफ्तार है जिस तरह से तुम सदफ़ से मोहब्बत करते हो। तुम्हें नहीं पता कि वो किसी की बात सुनने को सदफ़ अपने घर जाती है तो उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो उससे पूछती हैं कि तुम कहाँ से आ रही हो? जिस पर सदफ़ उसे कहती है कि मैं बिलाल के पास गई थी। जिस पर उसकी माँ उसे कहती है कि तुम क्या कह रही हो? तुम बिलाल के पास क्या करने गई थी? तुम्हारा वहाँ क्या काम था? जिस पर सदफ़ उन्हें कहती है कि मैं उससे पैसे लेने गई थी। उसकी माँ उसकी ये बात सुनकर बहुत परेशान हो जाती है। वो उसे कहती है कि तुम उससे पैसे लेने के लिए वहाँ क्यों गई थी? तुम्हें किसने कहा था कि उससे पैसे माँगो जाकर? सदफ़ उनसे कहती है कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मेरा भाई इस हाल में पड़ा है और मैं उसके लिए कुछ कर नहीं पा रही। मुझे आखिरी रास्ता जो नज़र आया वो बिलाल ही था। इसलिए मुझे मजबूरन उससे पैसे माँगने पड़े। उसकी माँ के हाथ में काँच का गिलास होता है जो वहीं पर गिरकर टूट जाता है और वो उसे कहती
کہتی ہیں کہ تمہیں کیا ضرورت تھی ان سے اس طرح سے پیسے مانگنے کی، ہم اس کے اتنے زیادہ بڑا احسان کیسے اتاریں گے، وہ تمہیں بیچ کر کھا جائے گا پھر بھی تمہارے پیسے نہیں پورے کر سکے گا۔ لیکن جس پر صدف انہیں کہتی ہے کہ یہ پیسے میں نے لیے ہیں تو میں ہی اسے واپس کروں گی، آپ اس چیز کی فکر مت کریں۔ لیکن اس کی ماں کہتی ہے کہ تم بکواس کر رہی ہو، یہ سب کچھ جھوٹ ہے، کہہ دو کہ تم پیسے نہیں لے کر آئی، میں نہیں مانتی کہ ہم اسے اتنا بڑا احسان لیں، اس لیے تمہارے باپ نے ساری زندگی اس کے احسان اتارے ہیں اور اب تم نے بھی وہی کام شروع کر دیا ہے۔ صدف ان سے کہتی ہے کہ میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا، میں کیا کرتی، میں نے آپ کے عمار سے پیسے مانگے تھے لیکن اس نے مجھے پیسے دینے سے صاف انکار کر دیا، نہ اس کے پیسے اتنے پیسے تھے، میں کیا کرتی، میں اپنے بھائی کے آگے مجبور ہو چکی تھی۔ وہیں دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ جب ہمیشہ بلال کے پاس جاتی ہے اور وہ اسے کہتی ہے کہ تم نے صدف کو کام پر کیوں رکھا ہے، تو بلال اسے کہتا ہے کہ تمہیں نہیں پتا کہ میں نے اسے کام پر کیوں رکھا ہے، میری دلی خواہش تھی کہ وہ میرے پاس آ کر کام کرے۔ وہ اس کے پاس سے ایک ملازم آتا ہے، وہ اسے کہتا ہے کہ یہ پھول لے کر جاؤ، وہ اسے بہت سارے پھول پکڑاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ جا کر صدف میڈم کے کاؤنٹر پر رکھ دو، میں چاہتا ہوں کہ آج ان کا پہلا دن ہے، وہ بہت زیادہ خوش ہو جائیں کہ ان کا پہلا دن ہے اور اتنا اچھا گزرا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ان کا پورا دن فریش گزرے۔ جس پر جب یہ بات ہمشا دیکھتی ہے تو اسے بہت غصہ آتا ہے، وہ بلال سے کہتی ہے کہ تمہیں اتنا سب کرنے کی کیا ضرورت ہے، وہ صرف ایک ملازمہ ہے جو یہاں پر آ کر تمہارے لیے کام کرے گی اور کچھ بھی نہیں ہے، تم اس کو اتنا اسپیشل کیوں فیل کروا رہے ہو۔ بلال اسے کہتا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، وہ اسپیشل ہے اور بہت اسپیشل ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اس کی ایسے ہی ہمیشہ خاطرداری کرتا رہوں، تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ مجھے کتنی زیادہ خوشی ہو رہی ہے صدف کو یہاں پر اپنے آفس میں دیکھ کر۔ صدف کو ہمشا کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ وہاں سے آ جاتی ہے، وہ عمار کو بلاتی ہے اور اسے بات کرتی ہے، اسے کہتی ہے کہ آخر صدف کو کیا ضرورت پڑی تھی اس کے ساتھ نوکری کرنے کی، تم نے کہا تھا کہ وہ تمہیں پسند کرتی ہے، تم سے شادی کر لے گی، تو اب ایسا کیا ہوا ہے؟ جس پر عمار اسے کہتا ہے کہ مجھے لگتا تھا کہ وہ مجھے پسند کرتی ہے، مجھ سے محبت کرتی ہے، لیکن اسے تو مجھ سے محبت ہی نہیں، میں نے اپنے ہی اندر اتنی بڑی غلط فہمی پال لی تھی کہ شاید صدف مجھ سے بہت محبت کرتی ہوگی، میری طرح ہی مجھے چاہتی ہوگی، لیکن مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ جس طرح میں اسے چاہتا ہوں وہ مجھے ویسے نہیں چاہتی، تم بھی تو بلال کو چاہتی تھی، کیا ہوا پھر؟ بلال تمہاری بات نہیں مانتا، تم کوشش کرو نا اس کو پیچھے ہٹانے کی، ہو سکتا ہے کہ وہ صدف کی جان چھوڑ دے۔ جس پر اسے ہمشا کہتی ہے کہ بلال بھی اس کی محبت میں اسی طرح سے گرفتار ہے جس طرح سے تم صدف سے محبت کرتے ہو، تمہیں نہیں پتا کہ وہ کسی کی بات سننے کو صدف اپنے گھر جاتی ہے تو اس کی ماں بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں، وہ اسے پوچھتی ہیں کہ تم کہاں سے آ رہی ہو، جس پر صدف اسے کہتی ہے کہ میں بلال کے پاس گئی تھی، جس پر اس کی ماں اسے کہتی ہے کہ تم کیا کہہ رہی ہو، تم بلال کے پاس کیا کرنے گئی تھی، تمہارا وہاں کیا کام تھا؟ جس پر صدف انہیں کہتی ہے کہ میں اسے پیسے لینے گئی تھی، اس کی ماں اس کی یہ بات سن کر بہت پریشان ہو جاتی ہیں، وہ اسے کہتی ہیں کہ تم اس سے پیسے لینے کے لیے وہاں کیوں گئی تھی، تمہیں کس نے کہا تھا کہ اس سے پیسے مانگو جا کر؟ صدف ان سے کہتی ہے کہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ میرا بھائی اس حال میں پڑا ہے اور میں اس کے لیے کچھ کر نہیں پا رہی، مجھے آخری راستہ جو نظر آیا وہ بلال ہی تھا، اس لیے مجھے مجبوراً اس سے پیسے مانگنے پڑے۔ اس کی ماں کے ہاتھ میں کانچ کا گلاس ہوتا ہے جو وہیں پر گر کر ٹوٹ جاتا ہے اور وہ اسے کہتی ہیں کہ تمہیں کیا ضرورت تھی ان سے اس طرح سے پیسے مانگنے کی، ہم اس کے اتنے زیادہ بڑا احسان کیسے اتاریں گے، وہ تمہیں بیچ کر کھا جائے گا پھر بھی تمہارے پیسے نہیں پورے کر سکے گا۔ لیکن جس پر صدف انہیں کہتی ہے کہ یہ پیسے میں نے لیے ہیں تو میں ہی اسے واپس کروں گی، آپ اس چیز کی فکر مت کریں۔ لیکن اس کی ماں کہتی ہے کہ تم بکواس کر رہی ہو، یہ سب کچھ جھوٹ ہے، کہہ دو کہ تم پیسے نہیں لے کر آئی، میں نہیں مانتی کہ ہم اسے اتنا بڑا احسان لیں، اس لیے تمہارے باپ نے ساری زندگی اس کے احسان اتارے ہیں اور اب تم نے بھی وہی کام شروع کر دیا ہے۔ صدف ان سے کہتی ہے کہ میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا، میں کیا کرتی، میں نے آپ کے عمار سے پیسے مانگے تھے لیکن